I only face problem with the map. Even I feel that Yes. like ma'am was also discussing the same thing, that children could not do the map properly. Did you people not practice this map, or what? There was no practice for map, right? Yes, ma'am. Yes. But why is it so? I have been telling you consistently, please be uh, regular with your map practices. Just 5 places in a day, if you are doing, how much time it will take? Hardly 5 or 6 minutes. Yes, ma'am. So please do that. It is required. Ma'am, have you checked the copies? But a long time back. 10C I corrected on Sunday. Saturday itself I checked all the bundles. Like for class 10C, all the copies I checked on Saturday itself. See, many of you have done really very well. But the detailed questions, some of you could not give correct answers for the objective ones. Let us discuss the question paper. Okay, ma'am. Do you want me to discuss the question paper, or shall we continue with the revision part? Ma'am, will you be telling us the marks? You want to know the marks? Ma'am, no. Yes, Yes, ma'am. Ma'am. See, Yes, marks I can tell you only for my part. Like geography and economics, I don't know. I can only tell you Yes, about please how much tell you us have, your okay, mark. ma'am. Yes, ma'am. right? Okay. So those who are there in the Yes, meeting, their marks I will tell. Okay. okay, ma'am. Fine. Okay. Just a second. Let me open the class 10th C, right? Tenth C. Okay. Anadi. Anadi has scored 27 out of 32. Your history and civics paper was out of 32, right? So you have scored, Nadi, 27 out of it. You have done slight objective, in the objective part, your mistakes are there. And I think one of the detailed questions you could not write properly, right? Okay, Rest, ma'am. there was no problem. I will discuss one by one everything with you people. First, the marks. Then we have Anshika Singh. Anshika Singh has scored 30 marks out of 32. Very good, Anshika. Unexpected marks. Very good. Then we have Thank you, ma'am. Anshika Verma has scored 29. It is good. See, I have not done corrections leniently, because we were told to be little strict with the correction part. Uh, because you people are the ones who have the potential to score 100 on 100 in your in SST, right? So keeping that in mind, certain spelling mistakes marks, of course, I have deducted, but not very much. Where I have found 4 5 spelling mistakes, major spelling mistakes, there I have deducted half marks only, not more than that. Okay, class. Then we have Hiten has got 28 out of 30. Again, I think, Hiten, you have lost your marks in objective part, not in the detailed ones, Okay, right? ma'am. You need to work Yes. on your objective part more. Then we have Kshitij Gangwar. Kshitij Gangwar. Beta, you have scored 31 out of 32. Very good score. But you can make Okay, it full. ma'am. Your paper was good. No, not much of cuttings were there. It was neat. See, when you give your paper, you need to be clear with what you are writing. You cannot go for cuttings every now and then, right? Okay, ma'am. Then we have Nabil, right? Nabil has got 23. Nabil, आपने कहाँ marks अपने ज़्यादा lose करे हैं?
See in the 3 marks questions, Yes, ma'am. You have written about the expectations that people have from democracy. No, you need to tell about that what expectations do they have. जैसे भाई उनका टेस्ट बार बार वो टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल करते हैं तो वो दूसरी इज ऑलरेडी रेडी है ना. एक डिमांड पूरी हुई, दूसरी डिमांड दोबारा से आ जाती है. तो उसकी वजह से जो है दे कीप लाइक द जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेसी है, उसको टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है. एंड मोर ओवर you have to write that because of the test, that because of the expectations that the people have, the government needs to work in accordance to that, in accordance to that as well. ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप काम कर रहे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो. यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट एवरीबडी. और आप, ये सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो. आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी विद यू. एम आई राइट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम हर किसी को खुश रखेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी. तो कभी ना कोई ग्रुप हमेशा एनॉर्ड रहेगा ही रहेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टेस्ट जो है वो हम अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे. वी विल गो फॉर व्हाट इज आवर ड्यूटीज द वे वी आर डूइंग. हम किसी के कहने से या नहीं कहने से, या किसी को के अप्रिशिएट करने से या किसी के अप्रिशिएट नहीं करने से अपने काम को करना बंद नहीं करेंगे, अच्छे काम को. ठीक है. Okay, ma'am. फिर वो आपके एक्सट्रैक्ट्स में आपके बताओ 24 वाला जो आपका डेमोक्रेसी वाला एक्सट्रैक्ट था, उसमें यू हैव गॉट जस्ट 2 मार्क्स. जबकि वो इतना इजी था. मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको डिटेल्ड क्वेश्चन सही नहीं थे, उनके ऑब्जेक्टिव में दे हैव स्कोर्ड फुल ऑन फुल. तो ऑब्जेक्टिव पे आपको Ma'am, that was of 5 marks. no that डेमोक्रेसी वाला एक्सट्रैक्ट वाज ऑफ 4 मार्क्स. Okay, ma'am. हाँ, ठीक है. बाकी नेपोलियन के चेंजेस जो हुए थे, उन्होंने क्या करा था वो आपने बहुत अच्छे से लिखा है. एंड वन मोर थिंग नबील, यू हैव नॉट रिटन योर आंसर्स इन पॉइंट. आपका जो लास्ट आंसर है वो आपने पॉइंट्स में स्पेसिफाई नहीं करा है. डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज. यू नीड टू स्टिक टू पॉइंट्स. हमने आपको हमेशा से बोला है पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे तो फिर आप ही मार्क्स लूज ऑन करोगे. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, देन कमिंग टू Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, I have lost marks in the extract ones or the starting ones. let me tell you that. कितने बेटा आपका एक्सट्रैक्ट में मार्क्स कटे हैं. ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 8 आपके पूरे करेक्ट है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है. फिर आपका जो वाला क्वेश्चन है ना 3.5 सॉरी 17 और 18 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, उसमें आपने जो रीजनल पार्टी के लिए जो सीट्स हैं वो 4 नहीं होती है, वो 2 सीट्स रिक्वायर्ड होती है. आपने 4 लिखी हुई है, वहां पे आपका मार्क्स कट गया है. ठीक है. बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ आपने बहुत ठीक लिखा है. ठीक है. फिर एक्सट्रैक्ट वाले में, सेकेंड वाले में, डेमोक्रेसी वाले में अगेन यू हैव लॉस्ट योर मार्क्स. आपने थर्ड वाला ऑप्शन करा ही नहीं है अटेम्प्ट, वो छोड़ दिया आपने. ठीक है. फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म वाला आपका ठीक है, आपने पूरे फुल ऑन में फुल है. फिर नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप. इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सक्लूसिवली बैल्कन स्टेट्स के बारे में लिखना था, बैल्कन रीजन के बारे में लिखना था. बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्पेसिफाई कर दिया. वो तो तब था कि जब हम आपसे पूछते कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या थे. हाउ बाल्कन स्टेट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसमें आपको एक्सक्लूसिवली बैल्कन रीजन्स के बारे में बताना था कि भाई कैसे ओटोमन एम्पायर से जब वो फ्री हुआ, ओटोमन एम्पायर ने अपना जब कंट्रोल लूज करा, तो किस तरीके से दीज पीपल दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स ओनली. ठीक है. आपने Yes, हाँ, आपने हितेन ज्यादातर आपने उसके बारे में लिखा है अबाउट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और आपने रिपीटेडली पॉइंट्स वही लिखे हैं. ठीक है. World अदरवाइज War. आपने पेपर बहुत अच्छे से करा है, बहुत नीटली अटेम्प्ट है. ज्यादा कटिंग्स नहीं है, ज्यादा जो है वो नहीं है, स्पेलिंग एरर्स भी नहीं है आपके इसमें. ठीक है.
बेटा बंद करिए। हाँ देन वी हैव प्रियल। प्रियल आपके है 27। प्रियल आप हो क्लास में बेटा यहाँ पे अभी? यस मैम। अच्छा ये लड़की है प्रियल गर्ल। प्रियल आपके जो गर्ल है उनके 31 है, जो बॉय है उनके 27 है। ठीक है प्रियल ओके। हाँ प्रियल आपने पेपर बहुत अच्छे से करा है, बहुत अच्छे से लिखा है, सब कुछ एक एक पॉइंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करा है। एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी टू सी योर पेपर, क्योंकि प्रॉपर स्पेसेस आपने छोड़े हैं, बिल्कुल भी स्क्रिबलिंग नहीं करी है। कहीं से भी आपके पेपर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चे में कोई कंफ्यूजन है कि क्या है। बहुत ही जिसको कहते हैं ना क्लियर माइंडेड होके आपने लिखा है, प्रॉपर आप जैसे रिक्वायर्ड होता है लिखना वो आपने पूरा करा है। बस आपने मार्क्स कहाँ लूज करे हैं, ज्यादातर आपने मार्क्स लूज करे हैं अपने उसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा है ना। आपने दोनों में 6% वोट्स और 6 सीट्स ही लिख दिया है। यस मैम। और 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स होगा। ये लाइन बहुत बच्चों ने नहीं लिखी है, इसको लाइन को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है ओके मैम। हाँ तो आपका मार्क्स जहां आपने लूज करे वो इसी क्वेश्चन में लूज करे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके 1.5 मार्क्स आए हैं इसमें। रेस्ट ऑल दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर करेक्ट। और अगर हम प्रियल का पेपर आपको दिखाएं कैमरा ऑन करके अपना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना नीट पेपर कैसे हो सकता है। देखो कैन यू पीपल सी? Yes, ma'am. एक एक लाइन प्रॉपरली लिख के सब देखो कितने अच्छे से लाइन ड्रॉ करी गई है। उसके बाद ये देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद प्रॉपर जो है स्पेसेस छोड़े गए हैं, लाइन खींची गई है। आप लोगों को 2.5 घंटे का मार्जिन रखना है कि आपको 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना ही करना है, व्हाटएवर में का। ये देखिए कहीं कटिंग्स दिख रही है, कुछ है? देखो कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया पेपर करा है इन्होंने। ये देखिए आई होप यू ऑल कैन सी दिस, Yes, ma'am. है ना। देखो इस तरीके की जो है नीटनेस और टाइडी पेपर चाहिए होता है किसी भी एग्जामिनर को करेक्ट करने के लिए। हालांकि आप लोगों को हम पढ़ाते हैं तो हमें तो पता है कौन कैसा लिखता है कैसे नहीं लिखता है। ये देखिए है ना, है कितना नीट। Yes, ma'am. Yes. एंड दिस इज व्हाट इज Yes. रिक्वायर्ड। यही चीज चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ओके नाउ कमिंग टू प्रियल बॉय, आर यू देयर प्रियल? Yes. हाँ आपने भी पेपर काफी अच्छा करा है बेटा। मार्क्स थोड़े से आपकी गड़बड़ हो गए हैं, वो शायद इसलिए कि कुछ एक आंसर शायद आपका पूरा पूरा आपने काट के दोबारा लिखा है ना। ये Yes, ma'am. आपका एक क्वेश्चन था आपका बस आपको यही काम नहीं करना है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट एज दे थॉट इन डेमोक्रेसी। ये वाला क्वेश्चन आपने काट के फिर दूसरी तरीके से दोबारा से लिखा है ना। आंसर इज मैम बेस्ड ऑन पहले हाँ बोलो 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 पहले क्या हुआ था। मैम किसी और टॉपिक पे लिख रहा था इसके लिए मैंने अच्छा काटा वो क्वेश्चन। ठीक है तो वो ये अब करने से पहले आप अब जब एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो बेटा प्लीज लिखने से पहले सोच लीजिएगा, कटिंग वटिंग मत करिएगा ज्यादा। आप सोचिए आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा इसमें, हुआ होगा ना। चलिए देन नेक्स्ट वी हैव प्रियांश। प्रियांश आपने भी पेपर बेटा बहुत Yes. अच्छा करा है, आपने भी पेपर अच्छा करा है। कहाँ गए प्रियांश? You have got 29 out of 32.
What you people need to follow more is you need to leave line after every answer in objective that you are giving, because they are all just 1 mark questions. Teacher need to write, teacher needs space as well to write. No, rest everything is correct. Only that in the objective one, that extract one for 23rd question, last 2 options are not correctly filled. And in democracy one extract, again that one option is wrong. 5 marks question, of course that cultural sentiments wala part आपने बहुत अच्छे से लिखा है. Everything language, how the culture played an important role, आपने उसके बारे में बताया है. पोलैंड के जो है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया है. वो सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिखी हैं. दिस इज रियली कमेंडेबल, क्योंकि एक एक पॉइंट को स्पेसिफाई करा है, हर चीज को अंडरलाइन करा है. वेरी गुड. आपने मार्क्स कहाँ लूज करे हैं वो बस ऑब्जेक्टिव में जो उधर करे, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला क्वेश्चन है वो भी आपका एकदम करेक्ट है, टू द पॉइंट है. अब डॉट्स की जगह केवल आप 1 2 3 फिर लिख दिया करो माँ, ठीक है? ओके मैम. हाँ, डॉट्स की प्रैक्टिस छोड़ दो और 1 2 3 4 स्पेसिफाई करा करो पॉइंट्स जब आप लिखते हो, ठीक है? हाँ जी, चलिए. सी मार्क्स they do matter, I know, but not very much. If you are clear with the concepts, if you know what exactly you need to write, then I think it is always easy to get score marks. Okay, so your focus should be more on how to score good marks by learning, by reading the chapters thoroughly, right? Yes. Then we have Raj Vikram. राज, आपके कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आप एसएसटी मेरे वाले पार्ट में? कोई बात नहीं अंजलि बेटा, Not much. फिर भी कितने कितने? Ma'am, 24. हाँ, इतने कम, ऐसा क्यों? आपके ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आपका गलत हो गया. Yes, ma'am. ठीक है, आपका थर्ड गलत हो And गया, then- क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें पूछा गया था, थर्ड में पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को पहले क्या बुलाया जाता, तो इट वाज भारतीय जनसंघ, है ना? आपने ईयर स्पेसिफाई कर दिया 1980, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा, आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो है 17th वाला, पॉलिटिकल पार्टीज वाला. आपने लिखा है 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, 6% ऑफ टोटल वोट्स. ठीक है, ये लाइन अभी हमने बताया था, पहले भी बताया, ये लाइन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट रिटन, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन देयर मार्क्स. ठीक है, Okay. बाकी आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दोनों करेक्ट हैं, कोई मिस्टेक नहीं है. 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने लिखे हैं, बट यू ओनली नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग पार्ट, और थोड़ा सा हाईलाइट कर दो. जैसे आपने लिखा है ना इंक्रीजिंग रोल ऑफ मसल पावर, उसको अंडरलाइन कर दो, पता चल जाएगा कि हाँ ये मेन हेड है, इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो या इसको एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, Okay, ma'am. हाँ, वेरी गुड. यू स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 32 इन माय पोर्शन. देन कम्स रवित वर्मा. रवित ने भी बहुत अच्छा करा है पेपर. रवित हैज स्कोर्ड 29 आउट ऑफ 30. रवित के ऑब्जेक्टिव सारे सही हैं, फोर्थ वाला गलत हो गया है, उसमें बेटा तीनों ऑप्शंस थे, 1 2 और 3. ठीक है, आपने केवल मैम was कंफ्यूज्ड. yes हाँ, मैम. मुझे वो क्रिश का भी गलत है, वो जो है बहुत सारे बच्चों का, क्रिश का पर्टिकुलरली गलत, पता नहीं कैसे हो गया. पहले उसने 1 2 3 शायद पूरा लिखा था, या किसी और बच्चे ने लिखा था पूरा 1 2 3, फिर काट के उसको पूरा लिखा था, फिर उसे काटा, फिर दोबारा से गलत कर. हाँ, वही हमने देख रहे हैं ये चीज, है ना? अच्छा, उसके बाद फिर आपके मार्क्स वही मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में आपने वही पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा है, जो उसमें आपने जो स्टेट पार्टी है उसके लिए 2 सीट्स चाहिए होती हैं, आपने 4 सीट स्पेसिफाई करी हुई है. ठीक है, ओके मैम. हाँ, तो यहाँ पे बस हाफ मार्क्स आपका गया है, बाकी तो ठीक है. 5 मार्क क्वेश्चन में भी वो, हाँ तो इसमें आपने ओटोमन बिस्मार्क के, आपने ओटोमन एम्पायर के बारे में लिखा है. आपने इसमें जो है आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखे हैं, आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है एज इट इज. रवित, तो कोशिश करो
आंसर्स। ये कृष्णा गुप्ता के नाम से कौन आ रहा होगा अंदर? आयुष गुप्ता। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। मैम वो नेशनलिज्म हाँ वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपने ना बाल्कन्स के बारे में लिखा है, आपने लिखा काफी कुछ अच्छा है, ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा है। बट क्योंकि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है तो वो पैराग्राफ में समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम पॉइंट्स को सेग्रीगेट करें, तो इसलिए हमने आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए हैं क्योंकि आपने पैराग्राफ में लिखा है। अगर आपने इसको पॉइंट्स में Okay, लिखा होता तो शायद आपको पूरे फुल ऑन फुल मिलते। ठीक है। ओके मैम। Ma'am, my one answer was written in paragraph. हाँ अच्छा, आयुष गुप्ता आ गए। अभी हमने आपका देखा नहीं है, अभी आप पे आए नहीं है। हम आप थे ना, जो बच्चे क्लास में, हम उन्हीं के मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं का पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं केवल। Ma'am, actually I was having some work. हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, नो इश्यूज। हम समझते हैं, घर पर दसियों काम होते हैं मम्मी पापा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलोनी सिंह, आर यू देयर सलोनी? Yes, ma'am. आपने तो बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं, ऐसा क्यों? आपके Yes, ऑब्जेक्टिव ma'am. तो सही है, ऑब्जेक्टिव तो आपका सही है। आपके पास सेट 2 था शायद ना, Yes, ma'am. उसमें उसके में आपने लिखा है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर। बेटा कभी नहीं होता है ऐसा, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा। उसमें जो मेजर पॉइंट है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है, उसमें आपकी डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द सिटीजन को जो है ज्यादा वैल्यू दी जाती है ना, तभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को लोग प्रेफर करते हैं। आपका ये फर्स्ट वाला गलत हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा Okay, आपका ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो तो मुझे, आपके पास क्वेश्चन पेपर अगर है तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। Ma'am, I don't have the question paper right now. इसमें कुछ था, पर ये आपने लिखा है, इसका आंसर आपने लिखा था नेपोलियन फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। ये नहीं था, ये गलत था। उसमें कुछ ऐसा था कि आपको ये बताना था, हाँ उसमें ही था कि इन टाउन्स गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट रिमूव्ड। Okay, ma'am. ठीक है। मैम आई हैव द क्वेश्चन पेपर। क्या था क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। Which of the following statements is incorrect? First, Napoleon abolished the feudal system. Second, Napoleon freed the peasants from serfdom. Third, in towns restrictions were not removed. Fourth, transport and communication systems were improved. हाँ तो वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट देयर नो, वो वाला बताना था इसमें, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट कौन है अब? सलोनी के बाद है वत्सल। वत्सल इज Ma'am, my marks. आई डिडंट टेल यू योर मार्क्स, यू No, हैव ma'am. 26, जबकि मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके देखो आपने ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी 3 मार्क्स वाले आपके सारे ठीक है, एक्सट्रैक्ट में आपने गलत कर दिया। फिर आपका वही नेशनलिज्म वाला जो है पूरा का पूरा ही गलत हो गया है। उसमें आपने बहुत सारी चीजें मिला दी है। आपने इसमें हंगर स्ट्राइक वाला डाल दिया है, शायद आपको एक क्वेश्चन पता नहीं था मेरे ख्याल से, जबकि हमने क्लास जब हम ले रहे थे मैंने ये आप लोगों से बुक में पर्टिकुलरली अंडरलाइन करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है ना। और इस Ma'am, बार on the next page, I've written about balcons also. तभी तो 2 मार्क्स मैंने दे दिए उसके अंदर बेटा, पूरा नहीं लिखा है आपने ठीक है। Okay, ma'am. Okay. तो ये कोई वो नहीं है। इट इज गुड टू नो ना हम कहाँ गलत हुए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस जगह पे इम्प्रूव कर सके, है ना। और Okay. आप भी सलोनी पॉइंट्स लिखा करो, डॉट्स मत लगाया करो बच्चे, ठीक है। 1 2 3 स्पेसिफाई Okay, करा, ma'am. ठीक है। Okay, ma'am. फाइन, देन कम्स वत्सल। वत्सल आर यू देयर? Yes, ma'am. हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट? Ma'am, I'm expecting that my objective would be wrong. Why? Which one? Ma'am, that BJP one. It was Bharatiya Jana Sangha, and no, very few have written Bharatiya Jana Sangha.
मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन इधर बीजेपी, भाजपा, किसी ने तो भाजपा भी लिखा है। एक बच्चे ने, पता नहीं किसने लिखा है, कम से कम 5-6 बच्चों ने लिखा है भाजपा। बीजेपी वॉज फॉर्मरली कॉल्ड एज भाजपा। भाजपा तो उसको हम हिंदी में बुलाते हैं भाई, बीजेपी इंग्लिश में हो गया, भाजपा उसका हिंदी वर्जन हो गया, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देन आपने लूज करा मार्क्स कहाँ पे जानते हैं, जहाँ पे रेक्टिफाई द स्टेटमेंट था, वहां पे पार्लियामेंट में कन्वेंट नहीं हुआ था, वो चर्च था उसका आंसर, सेंट पॉल चर्च। Yes, ma'am, I was regretting for that. व्हाई यू न्यू द आंसर? Yes, ma'am, but I have not read that statement properly. यू शुड हैव। जानते हैं पूरे उसमें सिर्फ एक ऐसा सिर्फ 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने करेक्ट लिखा है इसका। और शिवेंद्र ऑफ 10th A, he was not able to answer only that question, and because of that he scored 31.5. he was the only one. उसका पेपर इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया पेपर उस बच्चे ने करा है। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिज पेपर। जो जो चीजें जैसे जैसे हमने बताई थी एग्जैक्टली वैसे वैसे उस बच्चे ने करी। ऑल आंसर्स इन प्रॉपर पॉइंट्स। बेटा चार्जर लाके तो जल्दी से। all answers in proper points with proper main headings, underlining the headings, everything the way I have discussed with them कि how you need to go with your answers, पूरा वैसे लिखा है। और एक एक चीज को, जैसे जो स्टेट और रीजनल पार्टीज वाला था, रीजनल पार्टीज और पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज, उसमें क्या क्या कैसे लिखना है वो भी उसने अलग अलग करके लिखा है। इतना बढ़िया तरीके से लिखा है कि हमें तो बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो इस तरीके से फॉलो करा। जैसे प्रियांश ने इतना नीट पेपर करा है, प्रियांश हुई, प्रियल हुए, ये प्रियल गर्ल जो है, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। बस एग्जैक्टली वैसे ही उस बच्चे ने भी लिखा है, सब कुछ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करा है। कहीं से कहीं कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसको कि हम ये कह सके कि हाँ बेटा आपने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है। उनका सिर्फ हाफ मार्क्स इसी में डिडक्ट हुआ है कि उन्हें वो चर्च वाला पता नहीं था। अब वो बोला मैम अब मैं जो है रेगुलर पढ़ूंगा याद से, मैं सारे चैप्टर की थॉरो रीडिंग करूंगा ताकि मुझे मतलब इसमें भी मैं मार्क्स ऐसे ना लूज कर पाऊँ। ठीक है। बाकी वत्सल आपके जो ऑब्जेक्टिव वाला था एक्सट्रैक्ट बेस्ड, उसमें 1 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। नहीं उसमें नहीं, सॉरी, आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं 5 मार्क्स वाले में 27th क्वेश्चन में, जहां पे आपने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को स्पेसिफाई करा है, सेकंड पार्ट को पूरा तरह से स्पेसिफाई नहीं करा है, नेपोलियन का जो चेंजेस थे उसको। ठीक है। मैम रिजल्ट को कंक्लूड कर दिया था। आपने लिखा है इंक्रीज टैक्सेशन और सेंसरशिप, उन पॉइंट्स को भी लिखा था मैंने नहीं कंक्लूजन लिखा में। है आपने ही लिखा है कि changes brought up by Napoleon gave business class like small industries a newly found freedom. Since trade restrictions were removed, the industrialists were able to make more profits. However, it was soon realized that efficiency of administration systems did not go hand in hand with political freedom. इसमें आपने ये नहीं बताया कि ये जो political freedom थी वो administrative system में क्या changes हुए। चेंजेस ये थे कि भाई इंक्रीज्ड टैक्सेशन था, सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई थी, और फोर्स रिक्रूटमेंट वाज देयर इन दी आर्मीज। ये 3 पॉइंट्स आपने। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू टेल अबाउट Napoleonic code and it was itself a 5 marks question, so I thought that No. what were its results was First part was of 3 marks and the second part was of 2 marks. In your boards you will get specific marks for the parts, like if it is a 5 mark question, if it is a 3 mark question, they may give you 3 parts, one each. Sometimes what do they do in a 5 mark question, they give you 3 parts. They may give you only one question for 5 marks. They may give you 2 parts of questions for 5 marks, one for 3, one for 2. They may give you 4 parts depending what they are asking. They may give you even 5 parts as well, one marks each. Though generally they don't give, but I'm just telling you, you may get questions like this as well, and marks are specified, 1 plus 1 plus 3 plus 1. So ma'am, how much I got? You got 4 in that question because rest all the things you have specified, only this censorship part you did not write, no, so I have deducted 1 marks for that. No ma'am, I'm asking total. In total you have got 30. 29.5 equals to 30. Fine. Who is left now? Ma'am, I was not expecting that my marks would be deducted here. Why? Ma'am, because in the first part, I wrote just
exactly the same points that were written in the book. First part is exactly correct. There is no mistake in that first part. But the problem was with the second part, where you did not write about why the administration was not like the changes that were done did not go with the other parts. What exactly was not appreciated by the people of conquered territories. Got it? Ma'am, if I would have known that second part is of 2 marks, then I had enough to write in that also. Exactly. This I was wondering why he had stopped only writing this one. This much I have given, like I have written in your question paper, or like in the when you'll see the paper, you'll see what I have written. Write about this as well. Wherever like whatever mistakes the students have done, I have specified. This is the mistake, rectify. This is the problem, rectify. That way you will be working on your work more. Vedanshi has also done very nice, but then the problem with her was again, she has done a lot of cuttings. And very casually she has written. Some of the words are, I am not, I was, How are my writing skills? writing skills are good because I am not judging your writing skills. Writing part, of course, you need to improve little bit on your writing part. थोड़ा सा और नीट कर लो काम, ठीक है? जैसे अगर So हम ma'am, the portion of economics is of 24 marks. Yes, 20. Geography is also 24. Okay, ma'am. ठीक है? Like sections you people have specified. आप एक काम ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेक्शन को आप बीच में से शुरू करो. जहां पे आपका एक सेक्शन ओवर हो रहा है, आप नेक्स्ट पेज, न्यू पेज से सेक्शन, नया सेक्शन स्टार्ट कर दो. उससे वो सेग्रीगेशन बना रहता है, पता रहता है टीचर को, है ना? Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, I did that. So in the previous class, Uzma ma'am told me that it's not necessary to leave so much space in that page. देखो ऐसा है ना, पेज हम सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि जब आप सेक्शंस की बात करते हो, क्योंकि बोर्ड्स में हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि जहां पे आपका एक सेक्शन ओवर हो रहा है, आप न्यू सेक्शन से शुरू, न्यू पेज से शुरू करो नेक्स्ट सेक्शन. उसका रीजन ये है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन देन. कई बार क्या होता है ना, 5 लाइंस बची, बच्चे ने 5वीं लाइन से पहले जो है सेक्शन दूसरा शुरू कर दिया, फिर 2 लाइन वहां पे लिखी, दूसरी जगह पे लिखी, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो इट इज बेटर always start from the new page, है ना? Okay, ma'am. Or you can always draw margins to show bifurcation of the sections. ठीक है? Yes, ma'am. और पता है एक मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक रिया ने करा है ये काम. मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये, मैंने जब शायद क्लास में बताया भी था. लेट मी सी वेदर इट इज रिया और somebody else. किसी एक बच्चे ने, आई थिंक अंजलि ने करा है शायद. रुक जाओ, मेरे अंजलि, हाँ, it is Anjali. Anjali, are you there in the class? Yes, ma'am. Fine. See, I was really very happy to see the way you have written this answer. The decade of 1830 had brought great economic hardship. Because आपने पहले उसको flowchart बनाया, फिर उसको explain करा. ये बहुत अच्छा तरीका होता है of explaining the answer. Let me show it to you. Wait. The ones who are there in the class. Now, can you see the screen? See, this was one of the questions which asked about the hardships of 1830 in Europe. She has made the flowchart, and after that she has explained each part of the flowchart. This is really very good, appreciable. And where I have found the answers, to the mark and the way they were to be given, I have written good and very good as well. Very good, Anjali. This way only you should write the answers. You have scored a 25. You have lost your marks, I think, in objective part, question number 4. Then question number 7, you could not do.
then in that